Good afternoon, everyone. So, applications of integrals under the heading of area under curve. Let's consider a few more questions. Using the method of integration, find the area bounded by the curve mod x plus mod y is equal to 1. Now, it is important here to note mod x and plus mod y. So what type of a graph we are expecting here? First thing, mod x is equal to x whenever x is greater than or equal to 0. It is minus x whenever x is less than 0. So that's the basic definition. Now, when I consider this relation, the given equation, mod x can be plus minus x, mod y can be plus minus y. So this gives me the following four different possibilities. Check this out. When x is positive, but y is positive and negative, or when x is negative and then y can be positive or negative. So this gives rise to a total of four different equations. So please be sure that this equation gives us following four different possibilities, and each one of them represents a straight line. Now when we graph these straight lines, equation number 1, 2, 3 and 4, you can see this graph of this first line x plus y is 1 is this particular line. Clearly it passes through 1 comma 0 and 0 comma 1. Similarly we can graph the other remaining three lines. So one can be sure by looking at the graph. When this is plotted, we are interested in the getting the area of this region, which is nothing but a square. So final conclusion, एक तो ये अंडरस्टैंडिंग कि ये एक इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो गिवन इक्वेशन इज ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर. नाउ लेट अस फाइंड आउट द एरिया, एंड ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया का 4 टाइम्स कर देंगे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लॉजिकली सोचिए, सिर्फ इस लाइन से सोचते हैं, 0 से लेकर 1 तक आप इस लाइन को इंटीग्रेट कर दो, और इस लाइन में y कितना है 1 माइनस एक्स. और अदरवाइज ये तो चलो क्योंकि हम इंटीग्रेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसीलिए ऐसे किया है. और अदरवाइज अगर इंटीग्रेशन नहीं भी करते, आप पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर की साइड निकाल लेते, √2, और एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है. तो जब आप इस इंटीग्रल को एक्चुअली सॉल्व करेंगे, फाइनली आंसर मस्ट मैच विद 2 square units. So that one can easily verify. बट ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड यही है कि आप इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं, तो वो तो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा. Consider the following question. Find the area of a region enclosed between the two circles x square plus y square is equal to 4 and x minus 2 whole square plus y square is equal to 4. So check this out. First thing, given equations, let me call them 1 and 2. So first circle is the circle with the center 0, 0 and radius 2. And what about this second circle?
clearly center will become 2, 0 and radius 2. Again ये हमने 11th में करा हुआ है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. So this is a standard equation of the circle with the center h, k and radius equal to r. तो इसे यूज किया तो सेकंड सर्कल का सेंटर और रेडियस मिल गया. बस दो ही कर्व हैं. अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं. ऑफ कोर्स जो भी इक्वेशंस हैं सॉल्व देम टुगेदर. तो आपके सामने ही है कैलकुलेशन. यू विल गेट x इज इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 किसी भी कर्व में पुट कर दो, 1 या 2 में. I will get y as plus minus root 3. In simple word, I have their point of intersections with me. 1 comma root 3 and 1 comma minus root 3. अब हम इन सर्कल्स को ड्रॉ कर देते हैं. सर्कल को ड्रॉ का मतलब आप सोचिए, जब पहला सर्कल है सेंटर 0 0 रेडियस 2, सेंटर 0 0 और रेडियस 2. सो आपने ड्रॉ कर दिया फर्स्ट सर्कल. चेक करो ये फर्स्ट सर्कल जाएगा. लुक एट द कंडीशन केयरफुली. सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2. तो 2 रेडियस की कंपास ओपन कर दी और ये सर्कल ड्रॉ हो गया. सिमिलरली सेकेंड सर्कल में चेंज क्या हुआ है, सेंटर सिर्फ बदल गया है 2, 0. रेडियस स्टिल रिमेन्स द सेम. तो सेंटर अब आ गया 2, 0 के ऊपर और अब 2 यूनिट की कंपास खोल दी. और जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर डायग्राम बना के सोचिए, ये वाला सर्कल बन जाएगा. और विच एरिया इज रिक्वायर्ड, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन देम. तो डेफिनेटली उस केस में हम बात कर रहे हैं इस पूरे आई शेप्ड कर्व की. ये पूरा एरिया आपको निकालना है. लैंग्वेज इज मेकिंग इट वेरी क्लियर. वी नीड टू फाइंड दिस कंप्लीट एरिया. अब ये एरिया अगर आप सिमेट्री से ध्यान से देखें तो पहली बात, जितना एरिया ऊपर का होगा, ऊपर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये है, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया नीचे रहा होगा. और एट द सेम टाइम अगर मैं सिर्फ फोकस करता हूं इसके 1/4 पोर्शन के ऊपर, 1/4 का मतलब क्या हो गया, इफ यू कंसीडर द एरिया फ्रॉम 0 to 1, दिस येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट करा है, येलो वाला, दिस पोर्शन, येलो वाला जो एरिया दिखाया है, इस एरिया का अगर हम 4 टाइम्स कर दें, क्योंकि क्लियरली ये चारों एरियाज इक्वल रहे होंगे. तो बस अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट करके दिखाया है, हम उस एरिया को निकाल देंगे. सो प्लीज मेक इट श्योर दिस इज क्लियर. और साथ ही साथ येलो कलर के लिए कौन सा कर्व वर्क कर रहा है, कौन सा सर्कल, इज इट द फर्स्ट और द सेकेंड सर्कल. 0 से 1 में ये वाला सर्कल वर्क कर रहा है, ये वाला सर्कल, राइट, विच इज सर्कल नंबर 2. तो y ऑफ सेकेंड सर्कल विल बी यूज्ड. क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिमिट है 0 से 1, तो वो मेरी गई हैं सेकेंड सर्कल से रिलेटेड, नॉट द फर्स्ट सर्कल. तो बस 4 टाइम्स 0 to 1 एंड व्हाट इज द y ऑफ सेकेंड सर्कल, वो आप यहां से एलिमिनेट कर लेंगे. अंडर द रूट 4 माइनस और फिर ब्रैकेट में वही x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया. इसके बाद तो सिर्फ इंटीग्रेट कर दिया. फार्मूला देख लीजिए,
upper limit minus lower limit and simplify. इनफैक्ट अगर आप यहाँ नीचे ध्यान से देखें तो ये जो मैंने जर्नल फार्मूला बताया है, इफ यू आर गिवन विथ 2 सर्कल्स, सेम सिचुएशन है जैसे ये वाला क्वेश्चन में ये सिचुएशन थी, तो अगर आप कंपेयर करें तो a को 2 ले लिया है, रेडियस इज टेकन एज 2। तो अगर ऐसे 2 सर्कल्स हैं तो 2 चीजें हमेशा स्टैंडर्ड हो जाएंगी। एक तो उनका x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a,2 आएगा, और फाइनली आंसर हमेशा ये होगा। एरिया जो है a² / 6 ब्रैकेट में 4π माइनस 3√3, so that will be always fixed. So if you learn this as a standard result, तो अब आप अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक करें तो आपको सिर्फ a की वैल्यू ही तो पुट करनी है। तो आप चेक करिए a कितना था, 2। इस आंसर में a की जगह 2 रख दीजिए, इस आंसर में a की जगह 2, तो 2² / 6, और ये फिक्स है, दिस इज फिक्स्ड। तो 4/6 हो गया 2/3। सो बिफोर एक्चुअली सॉल्विंग, एग्जाम में तो ठीक है आपको पूरा इंटीग्रेशन से करके दिखाना है, बट अदरवाइज आप आंसर इसका डायरेक्ट बता सकते हैं विदाउट ग्राफ, विदाउट सॉल्विंग, विदाउट एनीथिंग। डायरेक्ट अगर आपने ये जर्नल फार्मूला याद कर लिया तो। जैसे कल की क्लास में हमने 2 पैराबोलास के बीच में देखा था एरिया, इफ यू रिकॉल, y² is 4ax and x² is equal to 4ay। इन दोनों पैराबोलास के बीच का एरिया होता है 16/3 a² स्क्वायर यूनिट्स। तो ये भी एक जनरल फार्मूला इज रिकमेंडेड टू लर्न, और ऐसे ही 2 सर्कल्स वाला भी आप कर सकते हैं। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। विजुअलाइजेशन के बाद सिर्फ इंटीग्रेशन करना और अपर माइनस लोअर लिमिट। एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बिफोर वी मूव ऑन। Okay, check out this question. Using integration, find the area of a region bounded by the triangle whose vertices are given to you. Now the idea is, आपने 10th में ही ये फॉर्मूला किया हुआ है, या 11th की बात करूं तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का ये याद करिए। राइट साइड में देखिए, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये लिख दिए। यहां पर ये 1 1 1 फिक्स होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। इफ यू रिकॉल, हम ये डिटर्मिनेंट्स में पढ़ चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट के अगर आइडिया से करते तो डायरेक्टली आपने देख लिया भाई आंसर नेगेटिव आ नहीं सकता, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। बट इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब अब आपको ये कंसेप्ट यहां पर समझना है कि हाउ आई एम गेटिंग द आंसर एज 4। लास्ट स्टेप देखो, यहां पर आंसर वही 4 आ रहा है, but there is a lot of calculation and concept which is used here. So how to proceed? Please check this out. आप एक तो इन वर्टिसेस को प्रॉपर वे में ऑर्डरिंग कर दो। ये रियल ग्राफ के ऊपर इमेजिन करो, -1, 0 ये रहा, ए पॉइंट कह दिया, बी कह दिया 1, 3 यहां रहा होगा, और सी है 3, 2 दिस पॉइंट। तो इन्हें एक्चुअल प्लॉट कर दिया। अब
ने ज्वाइन कर दिया तो ट्राइंगल बन गया ABC. So we are interested in getting this final area. ये वाला शेडेड वाला मुझे एरिया चाहिए ट्राइंगल ABC का. There is a simple visualization. आप सोचिए ये वाला एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूं. Look at this. अगर मैं -1 से 1 तक ए बी इक्वेशन के y को इंटीग्रेट कर दूं, ए बी को इंटीग्रेट कर दिया, तो सोचिए जरा ध्यान से मुझे क्या मिलने वाला है ऐसे केस में. -1 से 1 तक ए बी को इंटीग्रेट कर दिया, आई विल गेट दिस ट्राइंगल का बेसिकली पूरा एरिया मिल जाएगा. फिर मैंने इसमें ये ऐड कर दिया 1 से 3 तक y ऑफ BC, 1 से लेकर 3 तक BC ये रहा, ये पूरा एरिया मिल गया मुझे. बेसिकली ये पूरा मैंने आपके पास ये एरिया निकाल दिया है इस क्वाड्रिलेटरल का. अब अगर आप इसमें से ध्यान से देखें मैं कौन सा एरिया माइनस कर रहा हूं. ए से लेकर यहां इस पॉइंट तक -10 से लेकर 3 तक अगर मैं AC ने जितना भी एरिया बनाया इसे रिमूव कर दूं, ये एरिया हटा दूं, तो आई विल डेफिनेटली गेट द पेंडिंग एरिया, और बैलेंस एरिया इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. सो प्लीज मेक श्योर कि ये आइडिया आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन का पूरा क्वेश्चन रहेगा. आई एम वेटिंग फॉर अ सेकेंड मिनट. अभी आप सोचिए जरा इसे जो मैंने बताया है. I hope this idea is clear. अब यहां जब मैंने लिख दिया y ऑफ ए बी का मतलब मुझे ए बी की इक्वेशन अभी निकालनी पड़ेगी. और इक्वेशन आप किसी भी लाइन की कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म. तो ये यहां करा है ए बी, ये रहे ए एंड बी, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है. तो बस 2 पॉइंट फॉर्म अगेन रिकॉल क्लास 11th में करा हुआ स्ट्रेट लाइंस में क्या था फॉर्मूला, y माइनस y1 इज स्लोप एक्चुअल में ये हो गया इनटू x माइनस x1. So this is the formula for equation of the line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. So apply this formula and get the value of y. इसी तरह से BC की इक्वेशन निकाल दीजिए 2 पॉइंट फॉर्म. B और C ये रहे मेरे पास, तो B और C से आपने निकाल दी, और उसमें भी फाइनली y को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट y. और ऐसे ही मैंने AC की इक्वेशन निकाल दिया एंड गेट द वैल्यू ऑफ y. बस अब फार्मूला में डराइव पहले ही ये कर चुका था, और अब आपको सिर्फ y ऑफ AB, y ऑफ BC एंड y ऑफ AC इन्हें सब्स्टिट्यूट करना है. फॉलो द यूजुअल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. अभी भी थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, ये ध्यान रखना, अपर माइनस लोअर लिमिट में गलती हो सकती है.
Any doubt to anyone? You can always unmute yourself and ask. Another very similar question, just that यहाँ रिवर्स थिंकिंग क्या करा गया है, कह रहे हैं यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग 3 लाइंस। आपको ये 3 लाइंस दी हुई हैं। पिछले क्वेश्चन में इनके एक तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन थे, माने वर्टिसेस गिवन थी और आपको लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ी थी। अब आपको लाइंस की इक्वेशन गिवन है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? आप इन तीनों इक्वेशंस 1 2 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। 1 और 2 को सॉल्व कर दो, एक वर्टेक्स मिल जाएगी। सेकंड थर्ड को सॉल्व करा, सेकंड वर्टेक्स। फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर दिया, थर्ड वर्टेक्स मिल जाएगी। वंस आई हैव 3 वर्टिसेस विद मी, बस आप उनको थोड़ा सोचकर यहाँ प्लॉट कर देंगे एंड यूजुअल मेथड ऑफ द लास्ट क्वेश्चन विल बी फॉलोड। यहाँ अब आपको y इसमें निकालना पड़ा था, बट अब इस क्वेश्चन में बेनिफिट क्या हो गया, y हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अप्लाई द यूजुअल मेथड ऑफ इंटीग्रल, वो डायग्राम बनाने के बाद ही इसे हम विजुलाइज कर पाएंगे। और फिर एक क्वेश्चन ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, राइट साइड में जो मैंने दिखाया है ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन। A is 1, 2, B is 4, -2, C is 6, 4. Find its area. Now in this case, what do we note? Observe carefully when I plot these points. A 1, 2 ये रहा, B 4, -2 and C 6, 4 ये रहा. When I join them together, I will get this triangle. तो बेसिकली मुझे अब ये एरिया निकालना है। अब आपको ये एरिया निकालना है, तो चेक करिए, दिस एरिया कैन बी बेस्ट विजुलाइज अलोंग y एक्सिस। तो इस केस में लिमिट्स जो मैं लेता वो y की लेंगे, मतलब यहां x dy वाला फार्मूला लगेगा। कैसे? वो अब आप सोचिए क्या, -2 से लेकर 4 तक आप इस लाइन को, ये चलो मैं वर्टिसेस लिख देता हूं, ये A, B एंड C। तो इसका एरिया अगर आप विजुलाइज करें -2 से 4 तक x ऑफ BC जाएगा। इसमें से अब आपको 2 एरियाज माइनस करने पड़ेंगे। कौन कौन से एरिया माइनस होंगे? माइनस करूंगा, एक तो -2 से 2 तक x ऑफ AB, और साथ में 2 से लेकर 4 तक x ऑफ AC। This will be the expression for area. करिए इसे विजुलाइज। क्या मैंने सोचा होगा, कोई अलग चीज नहीं किया है, बहुत ध्यान से देखिए, सिंपल चीज हुई है। फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने ये टर्म लिखी है, ये क्या है, -2 से 4 तक BC को इंटीग्रेट कर दिया। तो -2 से 4 तक जब आप BC को इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली मुझे ये पूरा एक तरह से इस ट्रेपीजियम का एरिया मिल जाएगा। अब इस पूरे एरिया में से मुझे तो चाहिए ABC का एरिया, तो अब हम क्या करेंगे, आप ये वाला एरिया कौन सा मैंने माइनस करा है, -2 से 2 तक AB को माइनस कर दिया, फिर क्या माइनस करा है,
2 से लेकर 4 तक ए सी ने जो एरिया बनाया था अलोंग वाई एक्सिस वो माइनस कर दिया, तो टोटल एरिया में से जब ये दोनों एरिया माइनस हो जाएंगे, I will get the desired area. बस एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे. Check this out. The area bounded by y-axis, y equal to cos x, y equal to sin x, and limit भी दे दिया है from 0 to pi by 2. तो ये एरिया इनमें से क्या होगा? सबसे पहली बात, ये दोनों कर्व हैं. साइमल्टेनियसली जब आप इन्हें इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो पाई बाय 4 आ जाएगा. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कोऑर्डिनेट इज पाई बाय 4 और व्हेन x इज पाई बाय 4, व्हेन x इज पाई बाय 4, y विल बी साइन पाई बाय 4 या cos पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2. तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ रहा है. बट चेक करिए, अब इसको विजुलाइज करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं. फर्स्ट ये रहा सिंपल, 0 से पाई बाय 4. चेक इट आउट. डायग्राम में एक बार ध्यान से देखिए, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया. आई अज्यूम कि अब आपको एक कर्व ड्रॉ करने आते हैं. साइन एक्स और कॉस एक्स का बेसिक कर्व का ग्राफ का आइडिया आपको होना चाहिए. तो रेड कलर से साइन एक्स है, पर्पल कलर से कॉस एक्स है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया पाई बाय 4 के ऊपर. तो अब अगर आप ध्यान से देखें, आपसे एरिया पूछा था बाउंडेड बाय दीज कर्व्स एंड वाई एक्सिस. तो सोचिए जरा कौन सा एरिया निकालना है. अलोंग वाई एक्सिस का मतलब आपसे ये वाला एरिया पूछा है. दिस एरिया इज रिक्वायर्ड. और इस एरिया को निकालने के लिए नोट केयरफुली, 0 से पाई बाय 4 तक, 0 से पाई बाय 4 तक अपर कर्व कर दिया मैंने, ये वाला cos x हो रहा है, राइट. इसको इंटीग्रेट करते ही मुझे ये पूरा आंसर, पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया. और इस पूरे एरिया में से अगर हम अब क्या करें, 0 से पाई बाय 4 तक साइन के कर्व ने जो एरिया बनाया था वो हटा दिया, वो माइनस कर दिया. आई विल गेट द शेडेड रिमेनिंग एरिया, येलो कलर का जो चाहिए था. तो वही चीज मैंने यहां पर लिखकर दिखाई है. So this way you can easily get the area of this shaded region जो required है. इसका जो मैं ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं, अगर यहां देखने में लगता है कि भाई लिमिट्स हम वाई एक्सिस के अलोंग भी सोच सकते थे, बट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट इट विल बिकम वेरी वेरी कैलकुलेटिव. इसीलिए आई एम गोइंग टू अवॉइड दिस. क्यों? क्योंकि जब आप वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे तो यहाँ dy आएगा और यहाँ क्या आता है, x आएगा. और इस कर्व का x क्या है, cos इनवर्स y, sin इनवर्स y. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लिमिट्स अकॉर्डिंगली y की आ जाएंगी. और फिर आपको पता है साइन इनवर्स y को इंटीग्रेट करने के लिए आइलेट रूल लगाना पड़ेगा. अप्लाई दैट रूल एंड देन सिंप्लीफाई, अपर माइनस लोअर, आंसर बिल्कुल वही आएगा जो बहुत इजीली डायरेक्टली इससे भी आ जाएगा. सो इसीलिए सेकंड अप्रोच हम अवॉइड करेंगे. फर्स्ट अप्रोच जो इजी है सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं. बट इतना, इस तरह के क्वेश्चन जनरली दे आर नॉट एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन.
तो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस ही यहाँ पर कुछ लिया है, जैसे ये देखोगे आप, तो ये एनसीईआरटी मिसलेनियस है that you can now do easily in your homework. मैक्सिमम क्वेश्चंस आप चेक करिए, मैंने करवा ही दिए हैं. पैराबोला एंड अ लाइन, सर्कल एंड अ लाइन, 2 सर्कल्स, 3 लाइन्स, एक्स क्यूब और एक्स वाला ये भी हम कर चुके हैं. लाइन एंड दिस कर्व. अच्छा, ये कौन सा कर्व है? एनीवन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट कर्व इज दिस? x is equal to root y. ये क्या है? Can anyone tell me? x equal to root y कौन सा कर्व है? Yes, good. अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर इज y, और x स्क्वायर इज y तो अपर पैराबोला होता है. बट अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हुआ है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब x जो है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो नेगेटिव पोर्शन में मेरा ग्राफ जा ही नहीं सकता था. तो फाइनल रीजन, कंक्लूजन, दिस रिप्रेजेंट ओनली हाफ पैराबोला. तो अगर ये ग्राफ नहीं इमेजिन हुआ तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. तो इसलिए बेसिक चीजें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे. और यही मिसलेनियस का इस तरह के भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं. ये क्वेश्चंस थोड़े असाइनमेंट से थोड़े अलग से रहे हैं. दैट अगेन यू कैन इजीली सिंप्लीफाई. Any doubt to anyone? From tomorrow onward, we'll be starting with differential equations. Chale, you can now mark your attendance and then can leave the class. Please mark your attendance and leave the class.